So 2:5. Hmm. What will be the weight ratio of 2 liters of O2 versus 2 liter of SO3 will be? One answer is 1:5, another answer is 2:5. Which one is right? Sir, 2:5. 2:5. अच्छा, दोनों लोग सेम आंसर पे अग्री कर रहे हैं, 2:5. Ah, should I rub this Sir. one? Sir. Okay, very good. Why is this so? Why the weight should be 2:5? So 16/80. तो नहीं 32/80. हाँ, परफेक्ट. 32/80 का रेशियो ये फॉलो करेंगे, देयरफॉर 2:5. एक पार्टिकल इसका और एक पार्टिकल इसका लेता हूं मैं, तो द वेट रेशियो इज गोइंग टू बी 32 AMU इज टू 80 AMU or 2:5, and this will hold for no matter how many particles I'm going to take, till the point I'm going to take equal number of particles of this and this, the weight ratio, same weight ratio is going to follow. ठीक है, whether I'm comparing just one particle or n particle, it doesn't matter, this same weight ratio will hold true. That's good. uh, so just a simple thing, one more simple question. Suppose किसी कंडीशन में यहाँ पर गैस ए दिया हुआ है एंड SO3 दिया हुआ है 1 liter of this and 1 liter of this, and it is being said that gas A is uh, weight of 1 liter of 1 liter of a gas, weight of 1 liter of a gas is 2 times, that is the weight of 1 liter of SO3. ठीक है, what will be the molecular weight of this gas A? If under similar condition 1 liter of gas A is twice as heavier as SO3, 1 liter of SO3, what will be the molecular weight of A? 80. Molecular weight of A 80 होगा. Again, why? See, never stop at the answer, always give me a why. Are we all able to understand what question I am asking? So could you please repeat the question? Yeah, the question is, what is the weight of, what is the, what is molecular, or rather say molar weight, 1 mole का weight, molar weight of A is if 1 liter of gas A is twice as heavier as 1 liter of, yeah, for that matter say 2 liter of SO3. ये कर लेते हैं, ये वाली चीजें बाकी ऑटोमेटिकली हो जाएंगी.
Sir, it will be 80 grams. अभी 80 ग्राम्स रहेगा. Yes, sir. Under No, sir, it will be 80 into 160 grams. similar. Yes, it should be 160. Sir, 160. कहाँ इस क्वेश्चन के लिए 160 होना चाहिए. Is it what you are guys saying? Yes, sir. और ऊपर वाले कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए था जब 80 grams. what is the reason? Explain me the reason. Sir, because it is twice the 1 mole of SO3. So SO3's 1 mole is formula weight is it is 80 grams. So Hmm. twice of it. Hmm. Oh, so it will be 160 grams. Sorry, sir. पहले वाले सिनेरियो में क्या होगा? 160 gram. हाँ ठीक है. तो रीजन मुझे बताया करो. रीजन में काफी टाइम अभी आप लोगों के 2 क्वेश्चन सही हो गए ना. ऑलवेज थिंक विथ रीजन, सॉल्व इट विथ रीजन. मेंटल कैलकुलेशन भी करो तो रीजन वाइज करोगे, मेंटली चीजें सॉल्व हो जाया करेंगी काफी टाइम. ठीक है, तो वो लॉजिक क्लियर होनी चाहिए. सो इस केस में 160 ग्राम हो रहा है. एवरीबडी अग्री टू इट? Yes, sir. क्लियर है या अभी भी किसी को डाउट है 80 होना चाहिए? नहीं ना? नहीं सर. ओके फाइन. नाउ सेकंड कंडीशन में बताओ क्या होगा. सर तो उसका 320 होना चाहिए. यहाँ पे मोलर वेट हो जाएगा 320. क्यों? इधर 160 into 2. इंटू 2. ठीक है, बाकी सारे लोगों को समझ में आया 320 क्यों होगा? Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है ना? अगर है तो पूछ लो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू पुट इट ऑफ. क्योंकि ये चीज क्लियर हो गई तो मुझे जो भी अब एप्लीकेशन चाहिए होगा उसके लिए रिक्वायर्ड आपकी जो थिंकिंग होनी चाहिए वो हो गई इस प्रॉब्लम के साथ. ठीक है, so I don't need to pip it into it this particular concept anymore. अब मैं हर जगह पे इसको सिर्फ यूज करता रहूंगा क्वेश्चन सॉल्विंग या क्वेश्चन फ्रेमिंग में. ठीक है, अवोगैड्रो लॉ हो गया हमारा, गैलुसेक लॉ हो गया. आखिरी में एक ये चीज होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज. और सी एक थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री में आप लोगों को बता दूं. डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक वेट. डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक वेट स्केल. ठीक है. सी एकदम इनिशियली में हाउ वी यूज टू कैलकुलेट द वेट ऑफ एवरीथिंग, मतलब एलिमेंट्स के वेट को स्पेशली कैसे कैलकुलेट करते थे. तो एट वेरी बिगिनिंग the weight of atoms, the weight of atoms were calculated on relative scales by comparing weight of atom of one element
one element with other, ठीक है। और सो बेसिकली जब हमारे पास ऑब्वियसली ऐसा था कि इंडिविजुअल एटम्स का सबसे पहले तो हम कर नहीं सकते थे, तो वी यूज टू टेक लाइक एग्जैक्टली करते ये थे, कंपाउंड लिया कुछ, ठीक है, और एक गिवन वेट ऑफ कंपाउंड लेकर के उसको ब्रेक किया या रिएक्शन कराया किसी चीज के साथ, उससे कुछ गैस इवॉल्व हुआ या कुछ सॉलिड सब्सटेंस प्रेसिपिटेट हुआ, तो इसकी एनालिसिस करते थे और देखते थे कि ये एलिमेंट है या कंपाउंड है। अगर एलिमेंट है तो ठीक है, इसके 50 ग्राम से हमको कितना ग्राम ये मिला ये कैलकुलेट कर लिया हमने। इसका किसी दूसरे तरीके से हम रिएक्शन कराते थे सो दैट सेकेंड वाला पार्ट जो है इसके अंदर, अगर ये कंपाउंड है तो इसके 2 पार्ट्स होंगे कम से कम, दूसरा वाला पार्ट भी हमको मिले। तो मान लो इसमें से ये मिला कुछ 30 ग्राम और दूसरा वाला कंपोनेंट मिला 20 ग्राम, ठीक है, तो इसका 20 ग्राम इसके 30 ग्राम के इक्विवेलेंट है, राइट, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। फिर इसका 20 ग्राम किसी तीसरे चीज के साथ कंबाइन कर रहा है और उसका वेट 50 ग्राम आ रहा है जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोगों का आइडिया कैसे चलता था कि इनका रिलेटिव वेट जो है ना, इसके टर्म्स में इसको अगर रेफरेंस लिया हमने तो इसका रिलेटिव वेट 2.5 हो जाएगा, इसका रिलेटिव वेट 1.5 हो जाएगा, अज्यूमिंग दैट ये सारे मतलब इसके अंदर जितने पार्टिकल्स हैं 20 ग्राम के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं उतने ही पार्टिकल्स इसके अंदर भी हैं, और वो सारे पार्टिकल जो हैं वो एटम्स हैं, राइट। ये 2 अजम्पशंस चलता था हमारा। तो फर्स्ट लेवल ऑफ एटॉमिक वेट स्केल जो था ना, रिलेटिव एटॉमिक वेट स्केल, दैट वाज डेवलप्ड बाय दिस यूजिंग दीज टू अजम्पशंस। क्या अजम्पशंस था, इसके अंदर जो भी है particles they all are in atomic form, we never bothered to investigate this, वो atoms ही हैं या molecules भी हैं वो बाद में हमको पता चला, ठीक है। और ये पहला एटॉमिक रिलेटिव वेट स्केल जो था उसमें हमने अपना बेसिक एलिमेंट जो लिया था जिसके अगेंस्ट बाकी सारे एलिमेंट्स को हम इंडेक्स करते थे, दैट वाज चोजन टू बी फॉर फर्स्ट relative weight scale hydrogen was chosen as a reference, ठीक है। अब यहाँ पर हमने किया क्या था कि हाइड्रोजन गैस जो होता है ना, हाइड्रोजन गैस, दिस इज द लाइटेस्ट वन, lightest element, right? और इस हाइड्रोजन गैस यानी H2 के वेट को हमने 1 यूनिट मान लिया था। तब हमें पता नहीं था कि ये H2 है, तब हम लोग सिर्फ इसको H बोला करते थे, हाइड्रोजन गैस H। तब इसका फॉर्मूला क्या है ये हमको पता नहीं था, हमको बस यही पता था कि वहां पर बस एक ही एटम है और वहीं एक एटम, बहुत सारे वैसे एटम्स मिलकर के ये हाइड्रोजन गैस बना हुआ है, ठीक है। We never used to know at that time कि 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाता है और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बेसिकली हाइड्रोजन गैस क्रिएट कर रहे हैं, नॉट एटम। मेकिंग सेंस। अब इसके वेट को अगर 1 यूनिट हमने मान लिया तो बाकी जिसका भी वेट आएगा, जैसे हाई ऑक्सीजन का वेट क्या आ गया इस स्केल पर, ऑक्सीजन गैस का वेट क्या रहेगा 16 हीलियम गैस का वेट क्या रहेगा 4 4 क्यों 2, हाइड्रोजन गैस 1 है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस मतलब O2 का वेट आप बता रहे हो 16, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यस सर। H2 को अगर हमने 1 बोला तो हीलियम
4 का 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 32 का 16 हो जाएगा। या इसी तरीके से अगर सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 11.5 इंस्टेड ऑफ 23, half of the actual weight। ठीक है, so this was the first scale which we did। फर्स्ट स्केल के बाद सेकंड स्केल जो था, सेकंड रिलेटिव स्केल, that was on the basis of second relative scale। Was on the basis of oxygen as base element। ठीक है, एंड ये वर्क जो था वो एक साइंटिस्ट थे कैनिंजारो। ही इज अ फेमस पर्सनालिटी, ऑर्गेनिक में इनके रिएक्शंस भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ही डिड सम रिसर्च। रिसर्च का बेसिकली वही मास कंपैरिजन एंड with some logics, he tend to find that यहाँ पर हाइड्रोजन वेट स्केल में जो चीजें हमने ली है ना, जैसे हाइड्रोजन को 1 यूनिट जो किया है, that may not be potentially true। ठीक है, he revised this weight scale and he revised it in a way that oxygen atom was now getting 16 का वेट। मतलब ऑक्सीजन गैस जो था वो पहले 16 था ये वाले स्केल में, अभी ऑक्सीजन गैस का वेट क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 32। ठीक है, तो और बाकियों का वेट जो था वो मतलब जिसका जो था वो लगभग आ गया था। थोड़े से डिस्क्रिपेंसीज थे दैट इज गोइंग टू गेट सॉल्व लेटर ऑन, बट मोस्ट ऑफ दी चीजों के अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट जो थे वो लगभग हमको कैनिंजारो ने अपने टेबल से दे दिया था, और उसमें उसने सिंपल सा मॉडिफिकेशन किया था यूजिंग एवोगेड्रो लॉ। एवोगेड्रो की जो हाइपोथेसिस थी ना, उसी के हिसाब से कि अगर इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो जैसे कुछ एक केसेस में दैट इज होल्डिंग ट्रू। जैसे H2 को अगर मैं बट इस तरह के केसेस में इट इज नॉट होल्डिंग ट्रू। ठीक है, इसका एक वॉल्यूम और इसका एक वॉल्यूम, इसका दो वॉल्यूम कैसे बनाता है, अगर ये एक एटम है और ये एक एटम है तो हाउ कैन दिस बी टू मॉलिक्यूल्स? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर ये सिंगल हाइड्रोजन एटम है और ये सिंगल ब्रोमीन एटम है तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन दो वॉल्यूम मिल करके यहाँ पर दो वॉल्यूम नहीं बनना चाहिए था, एक ही वॉल्यूम बनना चाहिए था। आर वी मेकिंग दिस, इज इट मेकिंग सेंस टू अस? Yes. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई द प्रोपोजिशन ऑफ पॉलीएटॉमिसिटी केम इनटू बीइंग। ठीक है, एवोगेड्रो हाइपोथेसिस में ही इस चीज को प्रपोज किया गया था, और उसको एक्सपेरिमेंटली कैनिंजारो ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मटेरियलाइज कराया फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड नॉट ओनली मटेरियलाइज्ड इट, इसने मतलब इस प्रिंसिपल के बेसिस पर इसने वेट स्केल को करेक्ट किया, और करेक्ट किया तो हाइड्रोजन का वेट क्या हो जाएगा, अब 2 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सबका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इट ओके? यहां तक की बात क्लियर है हम लोगों को? Am I making sense Yes, sir. to all of you? Anyone face the
So hydrogen ko Kilimanjaro made it to be 2 just because it was turning out that these things are not single atoms, rather the gaseous molecules are multi atom system. ठीक है, एटलीस्ट इस केस में ये क्लियर हो रहा था कि दो दो एटम्स रहते हैं और तभी ये दो वॉल्यूम बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता है. ठीक है, तो हाइड्रोजन का वेट मॉडिफाई होकर के 2 यूनिट हो गया, और 2 यूनिट हो गया तो सबका वेट जो है वो डबल हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे पुरानी वाली जो चीज थी, ये वाली जो चीज थी, हाइड्रोजन गैस 1 यूनिट, तो बाकियों का वेट जो अभी का एक्चुअल वेट है उसका हाफ हो जाएगा सबका. अब इस चीज को ऐसे बोल सकते हो कि ये सबसे सिंपलेस्ट रिलेशनशिप था जो ह्यूमन काइंड ने डेवलप किया था, और या हमने अपनी एफर्ट, बहुत सारे एफर्ट की वजह से इसको फॉर द फर्स्ट टाइम डेवलप किया था. तो हमने इस एफर्ट को जस्ट रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है, इस चीज को, इस सिस्टम को, ये वाले फर्स्ट वाले सिस्टम को कंप्लीटली फॉरगो नहीं किया, मतलब इसको ऑब्सोलीट नहीं होने दिया. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? We didn't wanted it to get obsolete or vanished off. So इसको retain करने के लिए we developed a concept called vapor density. ठीक है, vapor density क्या होता है? Vapor density of anything simply means relative weight of that substance with respect to that of hydrogen. ठीक है, equal volume of हाइड्रोजन गैस और किसी भी दूसरी चीज का गैसेस बना करके और इक्वल वॉल्यूम अगर ले लेते हैं और दोनों के वेट का जो रेशियो होगा, दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज वेपर डेंसिटी ऑफ द अदर थिंग. इज इट ओके? Yes, sir. So suppose I am taking Al2O3. क्या ले रहा हूं? Al2O3. What will be its vapor density? Al is 27, oxygen is 16. Al2O3. Sir, 51. 51. Al2O3 is, अब पहले तो इसका वेट निकाल लेते हैं. सो इट इज 54 प्लस 48, 54, 102. 102 रहेगा ना, कि 112 हो जाएगा? 102. 102. ठीक है, तो इसका रिलेटिव वेट विद कंसिडरिंग हाइड्रोजन गैस एज 1 क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा. तो वेपर डेंसिटी ऑफ Al2O3 is going to be 51. Is it clear? So वेपर डेंसिटी का लाइक अगर मैं डेफिनेशन आप लोगों से पूछूं, तो व्हाट इज गोइंग टू बी इट्स डेफिनेशन? The mass ratio of any element or compound's weight Equal volume of, yeah, to hydrogen, with respect hydrogen to gas that of hydrogen gas. at same volume. Right, right. That is termed as vapor density. So we will take up that definition later on. पहले ये relative वाली जो चीजें हैं उसको मैं complete कर लेता हूँ. ये point समझ में आ गया ना, vapor density क्या होता है? तो किसी भी चीज का वेपर डेंसिटी अगर दिया हुआ है और उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो हमको क्या करना होगा? मोलर वेट इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी. राइट?
एंड बाय द वे ये वेपर डेंसिटी जो है, इज इट एब्सोल्यूट डेंसिटी? नो, इट इटसेल्फ इज अ रिलेटिव डेंसिटी. वेपर डेंसिटी इज रिलेटिव डेंसिटी, राइट? इट्स नॉट एब्सोल्यूट वन. एब्सोल्यूट वन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम? केजी मीटर पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सीसी. और ये रिलेटिव वाले जो होते हैं ये यूनिटलेस क्वांटिटी होंगे. दो चीज की डेंसिटीज को हम सिर्फ कंपेयर कर दे रहे हैं. ओके. Second relative mass was on the basis of oxygen as base element and एक second. Let me get back to this vapor density and relative density term. This was the second scale and जो मैं बोल रहा था ना आप लोगों को, देख पहले जब AMU वाली चीज बता रहा था, आई सेड के रिलेटिव स्केल्स, रिलेटिव वेट स्केल वाली जो चीज थी, that we had tried for oxygen before trying for carbon. And like उसका basis जो था, that was prepared by Cannizzaro. And Cannizzaro ने ही ये मतलब ऑक्सीजन गैस का 16 के बदले 32 लेना एंड इसकी वजह से हाइड्रोजन को 2 लेना, ये वाला प्रोपोजिशन दिया था. इस प्रोपोजिशन की वजह से सेकेंड रिलेटिव वेट स्केल हमारा प्रिपेयर हुआ था. एंड देन केम थर्ड रिलेटिव वेट स्केल, जो कि हम लोग द थर्ड रिलेटिव वेट स्केल, relative weight scale, which is based on carbon 12, which we are now following in form of AMU. ठीक है? Based on mass of, based on the third relative weight scale based on mass of carbon 12 was finally developed and this is also known as AMU scale or unified mass scale. ठीक है? एंड अब हम लोग इसी को यूज करते हैं. वी नो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ व्हाट AMU इज, सो आई एम नॉट गोइंग टू डीप डाइव अगेन इनटू दैट. यहाँ पे सिर्फ मैं एक चीज को कवर कर रहा हूँ, वेपर डेंसिटी का डेफिनेशन. वेपर डेंसिटी एक बार और आएगा, और मतलब बहुत देर बाद नहीं, थोड़ी ही देर बाद आएगा फिर से. वेपर डेंसिटी बेसिक टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी समझाऊंगा, डेंसिटी की टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा तो वहां पर फिर से एक बार ये आएगा, जस्ट नाम बता दूंगा. ओके. वेपर डेंसिटी इज द रिलेटिव weight of same volume in gaseous substance with respect to weight of same volume of hydrogen gas under similar or same conditions, under same B and C conditions. Is it okay?
we can have this, that vapor density in substance, no matter whether it is gas, solid or liquid, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट डजंट मैटर. Substance is equal to molar mass by 2. ठीक है, या फिर मोलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी, मोलर मास इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी. Okay. This एक छोटा सा प्रिंसिपल और है which I would like to tell and then we will move on from this segment altogether. ये जब रिलेटिव मास स्केल्स वगैरह का डेवलपमेंट चल रहा था, तो द की वाज दैट कि इक्वल वॉल्यूम के वेट्स को कंपेयर कर रहे थे हम लोग, एंड वी वर समहाउ या इक्वल क्वांटिटीज, नंबर काउंट ऑफ पार्टिकल्स को कंपेयर करके एंड रिलेटिव वेट्स ऑफ ईच सब्सटेंस हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, हाउ हेवियर इज वन थिंग विथ रिस्पेक्ट टू द अदर थिंग. ठीक है, अब ये कैनिंजारो के एफर्ट वगैरह के बाद हमें लाइक काइंड ऑफ स्टेबलाइज्ड एटॉमिक वेट का आइडिया मिल गया था. ठीक है, और उस टाइम पे जो अननोन सब्सटेंस थे ना, अननोन सब्सटेंस मतलब जो नए थे, जिनका हमको एटॉमिक वेट नहीं पता था, उनका एटॉमिक वेट पता करने के लिए वी यूज्ड टू हैव a simple formula which is known as Dulong-Pettit law. ठीक है, ये सिंपल क्यों था ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मतलब बाकी सारे में Dulong-Pettit लॉ, और ये फंडामेंटल मेथड नहीं था, ये सेकेंडरी मेथड था. हाउएवर दिस वाज इफेक्टिव, इफेक्टिव एज इन रिकन्फर्मेशन के लिए वेदर एनीथिंग इज राइट और नॉट. हमने जो कैलकुलेट किया है थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, वो एक्सपेरिमेंट्स के अंदर कोई लोचा तो नहीं है, ये सारी चीजें बताने के लिए दिस यूज्ड टू बी अ वेरी गुड दिस थिंग लॉ. इसमें बेसिकली हम करते क्या थे कि वी यूज्ड टू टेक specific heat capacity. Do we know what specific heat capacity is? Yes, sir. Okay. So we used to take specific heat capacity of any substance which has been found, and the formula is like this: specific heat capacity Heat capacity upon mass. heat capacity upon mass is specific heat capacity multiplied by atomic weight this was coming out to be nearly constant and equal to 6 calorie per degree per degree. ठीक है, या पर केल्विन.
बोल रहे हैं। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो सब्सटेंस का होता था ना, ये हमको कैलोरीज में लेना होता था, दैट इज द ओनली कैच। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस यूनिट में रहेगा मेरा, कैलोरी पर केल्विन ग्राम। इज इट ओके? और एटॉमिक वेट इससे हमारा किस में आएगा, ग्राम में आएगा। इज इट क्लियर? और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करना ऑब्वियसली उस टाइम पे हमारे लिए ज्यादा इजियर था कंपेयर टू कि कंपेयर कर करके वेट्स को प्रिसाइजली, मतलब एक का कंपेयर किया दूसरे के साथ, फिर इसको कंपेयर किया तीसरे के साथ, और ऐसे कर करके रिलेटिव वेट निकालना यूज टू बी अ टीडियस प्रोसेस। कंपेयर टू दैट, वो सब्सटेंस अगर हमको मिल गया तो डायरेक्टली हीट करके उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना हमारे लिए रिलेटिवली इजियर टास्क हुआ करता था। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? Sir, if any reaction does not contain any heat capacity, no heating point. सॉरी फिर से बोलो। If any reaction does not needs any heating at all. नहीं, और रिएक्शंस को हीट नहीं, मतलब ठीक है, रिएक्शन कोई हीट होने से हो रहा और नहीं हो रहा उससे हमको लेना देना नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट कि जैसे ए एक कंपाउंड है जिसके अंदर 2 या 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये बी से रिएक्ट करता है तो इसका एक कंपोनेंट जो है वो बाहर निकल जाता है इन फॉर्म ऑफ टी। ठीक है, और ये जो है ये प्योरर फॉर्म है, ये एलिमेंटल फॉर्म। ठीक है, एटॉमिक फॉर्म है कि नहीं ये हमको नहीं पता, बट एटॉमिक तो डेफिनेटली नहीं होगा, बट एलिमेंटल फॉर्म है ये हमको पता है। ठीक है, तो अब यहां से हमको एक वेट मिला, एक सब्सटेंस का वेट मिला, और इस तरीके के प्रोसेसेस को मैं बार बार इसको दूसरे चीज से रिएक्ट करूंगा, कुछ ई मिलेगा, तो ई और डी का रिलेटिव वेट हमको पता चल जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सर आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, देखो, जैसे एग्जाम्पल के साथ अगर मैं करूं तो HCl है मेरे पास। ठीक है, HCl अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, वी आर गोइंग टू गेट NaCl एंड H2। ठीक है, तब H2 तो पता नहीं था हमें, मतलब H2 कैनिंजारो के साथ हमको पता चल गया था, तो ठीक है, H2 था हमारे पास। अब मान लो मुझे सोडियम का वेट नहीं पता है, ठीक है, तो इसका जितना वेट निकला, ठीक है, इसके वेट को हम मेजर करेंगे, जो भी गैस H2 निकला उसका वेट निकाल लेंगे, और यहाँ पर Na जितना गया, जितना रिएक्ट किया, ठीक है, वेट ऑफ Na ले लेंगे, and then we can compare or say that this much mass of H is equivalent to this much mass of Na, और simply इसका वेट अगर मान लो, इसका वेट को अगर मैं 1 यूनिट मानता हूं, तो इसका जो भी रिएक्टिंग वेट होगा, राइट, वो वेट डिवाइडेड बाय, मतलब इसके वेट को अगर मैंने 1 यूनिट माना है तो इसका जो वेट होगा हाँ, अरे सॉरी, इसका जो वॉल्यूम, जितना भी वॉल्यूम आया, मान लो उसका वेट आया 5 ग्राम, हमने मेजर किया, हमें वेट आया 5 ग्राम। सोडियम जो हमने यूज किया था उसका वेट आ रहा है, से फॉर एग्जांपल ये अगर 5 ग्राम आया, तो इधर जो आएगा मेरा इक्विवेलेंट वेट रिएक्ट करने के लिए जो मुझे चाहिए होगा, दैट विल बी 115 ग्राम। ठीक है, ये दोनों इंफॉर्मेशन मुझे मिलते हैं या हमने कैलकुलेट किए। नाउ इसके वेट को अगर मैं 1 यूनिट मानूंगा तो इसका वेट ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 23 यूनिट्स। इज इट ओके? Yes, sir. अब ये Na हमको मिल गया,
और मान लो काफी सारी चीजें हैं जो डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, बट Na के साथ रिएक्ट कर सकती हैं इजीली। ठीक है, तो अब Na को उनके साथ रिएक्ट कराऊंगा मैं और देखूंगा कि Na के 23 ग्राम्स के साथ या 23 यूनिट्स के साथ वेट बाय पार्ट उस पर्टिकुलर चीज का कितना वेट बाय पार्ट रिएक्ट करता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे एक एग्जांपल ले लूं और, तो सोडियम ऐसा चीज जिसके साथ हाइड्रोजन ना रिएक्ट करे बट सोडियम रिएक्ट कर जाए, राइट? एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं। देखो डायरेक्ट कोई चीज तो है नहीं जिसके साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करे, सॉरी सोडियम रिएक्ट करे बट हाइड्रोजन ना रिएक्ट करे। बट हाँ, मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जैसे सोडियम कैन रिएक्ट विथ Fe2O3 टू फॉर्म सोडियम फेराइड, सोडियम एल्यूमिनाइट या सोडियम फेरेट, ये सब फॉर्म करते हैं। ठीक है, बट ये जो है ये मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी ऑफ मच यूज। टेक अनदर एग्जांपल। अच्छा, एक काम करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देन आई कम टू दिस। यहाँ पर सोडियम और इसका पता, वेट रेशियो पता चल गया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 23 यूनिट। ठीक है, HCl को हमने इलेक्ट्रोलाइज कर लिया, फाइन। और फिर हाइड्रोजन जितना निकला और Cl जितना निकला उनके वेट का रेशियो निकाल करके एंड Cl का रिलेटिव वेट हमने पता कर लिया। इफ वेट ऑफ दिस इज 1 यूनिट, जो हाइड्रोजन निकलता है उसको अगर मैं 1 यूनिट मानता हूं तो क्लोरीन जो निकलेगा दैट विल बिकम 18.75 यूनिट्स। ठीक है, अब क्लोरीन जो निकला वो क्लोरीन उसको रिएक्ट करा सकते हैं हम आयरन के साथ। ठीक है, और वो क्लोरीन रिएक्ट करके कुछ अमाउंट ऑफ FeCl बनाएगा, FeCl2 या फिर FeCl3, और मोस्टली FeCl2 बनाएगा। अब Cl जितना भी वेट निकला वो वेट आयरन के कितने वेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आयरन के जितने वेट के साथ वो रिएक्ट करेगा, तो अगर क्लोरीन के वेट को मैं 18.75 मानता हूं तो अकॉर्डिंगली आयरन का जो वेट होगा वो हमको पता चल जाएगा, रिलेटिव वेट। जैसे हाइड्रोजन से सोडियम का रिलेटिव वेट पता चला, हाइड्रोजन से क्लोरीन का रिलेटिव वेट पता चला, वैसे ही क्लोरीन का रिलेटिव वेट तो हमको पता चल गया इतना यूनिट है। रियलिटी में इसका 50 ग्राम, मान लो इसके 100 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, आई एम अज्यूमिंग। तो इसका अगर क्लोरीन का अगर रिलेटिव वेट 18.75 है तो आयरन का रिलेटिव वेट क्या हो जाएगा? इट विल बिकम जस्ट डबल ऑफ इट। Am I making sense? Hello, sir. You are not audible. In I am not between. audible. Wait, एक मिनट रुको। Sir. सो आई जस्ट सेड कि हाइड्रोजन से सोडियम का हमने निकाला, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन से क्लोरीन का रिलेटिव वेट निकाला 18.5। क्लोरीन जो भी मिला या कुछ 50 ग्राम ऑफ क्लोरीन लिया जो कि आयरन के 100 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, और क्लोरीन का रिलेटिव वेट हमने 18.75 निकाल रखा है हाइड्रोजन के साथ वेट कंपैरिजन करके। तो क्लोरीन का 50 ग्राम अगर आयरन के 100 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है और क्लोरीन का रिलेटिव वेट है 18.75, तो सॉरी आयरन का रिलेटिव वेट क्या हो जाएगा? इट विल बिकम ट्वाइस ऑफ दिस, राइट? या इसका 50 ग्राम इसके 150 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, तो आयरन का रिलेटिव वेट क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ दिस,
right? That is 56.25. Am I making sense? Hello? Hello? Yes, sir. Is it okay? Sir, I didn't understand it completely. You didn't understand it. Okay. I'm just saying two things. Okay. First thing I'm saying is, let me first rub everything out of here. First. ये जो ओवरऑल वेट डेवलपमेंट का स्कीम था, हाउ इट यूज्ड टू वर्क, मैंने HCl लिया और इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराया, इट गिव NaCl प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का वेट जो निकला वो निकला 5 ग्राम और इसका यूज हुआ 113 ग्राम। तो हमने क्या बोला, इसका वेट अगर 1 यूनिट है तो इसका वेट क्या रहेगा, 23 यूनिट्स। तभी 5:115 and 1:23 will have same proportion. Is it okay? तो रिलेटिव वेट ऑफ हाइड्रोजन 1, रिलेटिव वेट ऑफ सोडियम क्या हो गया, 23 हो गया। अब सोडियम का करने के बाद फिर से हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया हमने, कुछ अमाउंट ले लिया HCl का और दोनों को दोनों की मतलब HCl के इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से HCl का मिलता है मान लो 3 ग्राम्स एंड क्लोरीन मिलेगा हम लोग को 56.25 ग्राम, ठीक है। Based on this information, again I can say that if this is 1 unit, this is going to be 56.25 divided by 3, that is 18.75 units, ठीक है। तो हाइड्रोजन का रिलेटिव वेट 1 हमने ले लिया, क्लोरीन का रिलेटिव वेट 18.75 आ गया। Sir, but chlorine has 30.5. क्या क्या, सॉरी, वो क्लोरीन के पास का मतलब एटॉमिक वेट सेकेंडली होता है उसका एटॉमिक वेट होता है, ठीक है। जब हाइड्रोजन को 2 यूनिट लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाइड बाई 2 होकर के 35.5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हुआ हमारा एक तरीका। अब Cl से सर, बट हाइड्रोजन 1 unit. क्या क्या, हाइड्रोजन गैस का मास Hydrogen is 1 already in यूनिट, the form of H. So if हाँ नहीं, ये बट हाइड्रोजन गैस जब भी ये बनेगा, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस ना, मॉलिक्यूलर फॉर्म। So this value that is 56.25 you've taken randomly, right? Yes, I am taking all the numbers randomly. ये 23 भी नहीं है, इसका 11.5, अगर ये 1 यूनिट है तो ये 11.5 रहेगा, ठीक है। I am taking random values, don't go on the values, trying to match it somewhere, but I don't care about values, you just have to look at the numbers कि वो कैसे डेवलप किया था। सो 1 यूनिट के टर्म्स में समझा रहा हूँ, आप लोग उस चीज को समझ लो सिर्फ, ठीक है। वो एक्चुअल वेट के ऊपर मत जाओ। एंड देन आई विल कम टू, क्योंकि इसको 1 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकियों का ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा। इसको 11.5 कर लेते हैं, ठीक है। और ये फिर इसको कम करना पड़ेगा मुझे। रिएक्ट विद क्या बोलते हैं 57.5, ठीक है।
अभी क्लोरीन जो है वो आयरन के साथ रिएक्ट कर सकता है, और क्लोरीन का मान लो 50 ग्राम रिएक्ट्स विद आयरन का अगेन 150 ग्राम जो कि मैंने लिया। तो अभी मैं फिर से ये बोल सकता हूँ कि क्लोरीन का मेरा रिलेटिव वेट तो आ गया है इतना 18.75, तो आयरन का रिलेटिव वेट कितना रहेगा? इट हैज टू बी 3 times as higher as chlorine, so it should become 56.25। और इस तरीके से हम बाकी एलिमेंट्स का भी निकाल लिया करते थे रिलेटिव वेट वगैरह, और रिलेटिव वेट से फिर हाइड्रोजन को 2 ले लिया था तो हमको एब्सोल्यूट वेट भी मिल जाता था। एब्सोल्यूट वेट नहीं, बट हाँ एक बेटर रिलेटिव कंपोनेंट मिल जाता था, एटॉमिक वेट आ गया। अब पॉइंट ये होती थी कि वेरिफिकेशन अगर इन नंबर्स का करना है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, तो हमको एक दूसरे रास्ते से फिर से यहां तक पहुंचना होगा, राइट? जैसे अभी एक सेट ऑफ रिएक्शंस मैंने क्रिएट किया हाइड्रोजन के साथ, तो ये घूमता फिरता आया, आयरन का मुझे मिला, ठीक है। अब मैं कोई दूसरा कंपाउंड लूंगा हाइड्रोजन का, और उसके थ्रू ट्रांसवर्स करता हुआ फिर से मैं हाइड्रोजन के सॉरी आयरन के साथ रिएक्शन कराऊंगा किसी XYZ, जैसे HCl के बदले HBr लेता, Br का रिलेटिव वेट, और Br का आयरन के साथ रिएक्ट करा के फिर Br का रिलेटिव वेट निकालता। तो ये दो प्रोसेस हो गए। अब ये दो काम करके एक आयरन के वैल्यू को असर्टेन करना, ये सिंपल टास्क है, या फिर ये जो आयरन बन गया या आयरन हमने बना लिया है उसको हीट करके उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल करके और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना हमारे लिए इजियर टास्क रहेगा, राइट? एक बार Fe का एक प्रोसेस से निकाल लिया, और फिर हीट कैपेसिटी आयरन की निकाल ली, और फिर उसको डिवाइड कर दिया 6 से, यानी 6 से इस एटॉमिक हीट कैपेसिटी को डिवाइड कर दिया, एंड दैट इज गोइंग टू गिव मी एटॉमिक वेट, ठीक है। अब यहां से जो एटॉमिक वेट आया और यहां से जो एटॉमिक वेट आ रहा है एक बार प्रोसेस करने से, ठीक है, इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते थे, एंड उसके बेसिस पर बेस्ड अग्रीमेंट वैल्यू जो होता था उसको हम पिक कर लेते थे एज अ एटॉमिक वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात समझ में आई? इंस्टेड ऑफ डूइंग ये जो 2 स्टेप 3 स्टेप प्रोसेस है, इसको करने के बजाय हमने एक मतलब ऐसे बोलो कि ये 3 स्टेप का एक सिंगल प्रोसेस है, प्रोसेस 1, ठीक है। अब आयरन का अगर मुझे प्रोसेस 2 से करना होगा तो फिर से मुझे ये 3-4 स्टेप्स करने होंगे, तब मुझे आयरन का सेकेंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिलेगा, राइट? नाउ कंडक्टिंग these 3-4 step reactions, it is easier to do heat capacity analysis for iron. Am I making sense? Yes, sir. ठीक है, and Sir, that can is you give an example of heat capacity wala that? हाँ, मैं अभी क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोगों को, ये सारे एलिमेंटल चीजें हैं, अभी मैं आप लोगों को शुरू में बता दे रहा हूं क्योंकि ये बाद में कहीं ना कहीं यूज होंगे। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल या क्वेश्चन जो भी बोल लो। एक सेकंड, वैल्यू मुझे सिर्फ थोड़ा सा वर्कआउट कर देने दो। Okay, the question is if specific heat capacity of an unknown element is 0.38
8 7 joule per gram per Kelvin. ठीक है. What would be its atomic weight? That is what I need to find. So what I'll do, पहले इस जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना होगा. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग जनरली सी या एस से डिनोट करते हैं, एस और सी. ठीक है. So this will become 0.3887 divided by 4.18. ठीक है. This will make it calorie per gram Kelvin. इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो वी आर गोइंग टू गेट 0.093 कैलोरी पर ग्राम Kelvin. Is it okay? अब atomic weight will be equal to 6 divided by this number 0.093. ठीक है. 6 से इस नंबर को डिवाइड 6 को डिवाइड करेंगे अगर इस नंबर से तो वी आर गोइंग टू गेट 64.5. ठीक है. एंड नंबर जो एग्जैक्ट नंबर होता है दैट इज रफली दिस मच ओनली. 64.5 के बदले 63.5 होता है कॉपर. Understood? Yes, sir. Do you guys need any other like और कुछ इसके रिगार्डिंग समझना है? ये समझ में आ गया बात ना, what I am trying to convey to you guys. This can be a handy tool in order to calculate the atomic weight of a substance. ठीक है. और यहाँ से atomic weight को कैलकुलेट करके और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से जो हमारी वैल्यूज आ रही थी उनको हम मैप कर लेते थे. उससे हमको ये कॉन्फिडेंस हो जाता था कि जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करके ले करके आ रहे हैं दैट इज नॉट ऑकवर्ड एट लीस्ट. ठीक है. इट्स नॉट लाइक कि ये बस अचानक से आ जा रहा है. ठीक है. और लकीली हमको वो मिल जा रहा है वैल्यू. रादर इट इज समथिंग जो दो अलग अलग तरीके से ऑल टुगेदर सिमिलर वैल्यूज दे रहा है एंड देयरफॉर दिस शुड बी इट्स एटॉमिक वेट एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है. once we are aware about these things, now it's time for us to move into a certain level of problem solving. ठीक है. मैंने सीट जो भेजा था आप लोगों को ध्यान है, असाइनमेंट सीट. Yes, sir. Can we open that?
And can we try question number 3? Sorry, question number 3. हाँ, ओपन किया हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। So I'll start solving. Please do that.